नेसेसरी ऐसे बहुत सारे वुड हमने किए हुए हैं. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू दैट इफ यू चूज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल and if you choose a proper modality to the definitive wound, there will be a definitive increased chances of wound healing and betterment of the patient as well. So thank you very much. Thank you, Shreyas e-learning team, for this opportunity. I hope this was a protocol lecture. This was not a modality lecture. I hope the avasthas are very clear with all the technicians or all the physicians who are treating the wound. And if you see the proper stages of wound healing and choose the proper treatment protocol from Sashti, definitely there will be a benefit to the patient. Thank you very much, Shreyas e-learning team, for giving me this opportunity again to present in a very beautiful seminar called Prana. I am eagerly awaiting to hear from all these stalwarts which will come forward in the next lecture till 27th of April. Thank you very much, and thank you all the audience for patient listening as well. Thank you. Should I take the question? Hello? I see some questions in the chat box. I'll go with them. If a non-healing wound is not healing because there is calcification at the edge of the wound, as I said, लेखन कर्म करना चाहिए मैडम. अगर वहाँ पे calcification है, अगर वहाँ पे wound edges बहुत rigid हो चुके हैं, if there is no approximation or if the edges are not coming close enough and if they are stuck at a point due to fibrosis, then these are debrided. The edges are debrided with a scoop, with a lekhan shalak, and then proper healing of the wound may take place. In diabetic wound while Dupan, what precautions should be taken? There are not much major precautions in a diabetic. See, every wound, as I said, avastha is important. The depth of the wound is important. Dupan can be done with various techniques. It could be done with a nadi yantra. It could be done with a vessel kept, with a box kept, with a Dupan yantra kept inside the box, and the patient is advised to put the part inside it. And for a specific, see, only रूपन कर्म करते टाइम पे वहाँ अपना टाइम थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट्स में अगर देना है तो थोड़ा कम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा देने से भी ऐसे कभी कुछ गलत हुआ है या कॉम्प्लिकेशन हुआ है ऐसे मैंने तो नहीं देखा है. तो धूपन कैन बी इजीली एंड प्रोफाउंडली डन इन अ डायबिटिक वुंड. व्हाट टू डू फॉर डिस्कलरेशन अराउंड वुंड? जैसे मैंने कहा, पांडु कर्म और कृष्ण कर्म के जो टेक्निक्स कहे गए हैं संस्कृत में, अलग अलग ऑइंटमेंट आते हैं आजकल. इसका व्रण का जो कार रहता है उसको ठीक करने के लिए मेरी कलीग है, उनका थीसिस था इसके ऊपर, और उन्होंने बहुत सारे चूर्णों का इस्तेमाल भी किया था. व्रण कर्म में पांडु कर्म करना है या कृष्ण कर्म करना है, उसके ऊपर से अलग अलग द्रव्य आप चूज कर सकते हैं. What to do for maggots in the wound? Specifically, I have treated many patients. See, many now I have treated, not treated. I say I have handled. I say I have not treated because once maggot forms in the wound, यानी कृमि संक्रमण वहाँ पे अगर चालू हो जाता है, तो it is a definitive indication that the wound is very bad. There is a superadded infection to the wound. There is an underlying infection as well. We generally use turpentine. Turpentine is a solution. It is a very hard smelling solution which can be inserted in the wound, and maggot, if they are embedded inside, will start coming out. You just have to pick them, and if they become dead, you have to just clean the wound. Turpentine is one solution which can be used.
एनी स्पेसिफिक ड्रग फॉर धूपन कर्म इन डायबिटिक वुंड। प्रक्षोभनागण की कोई भी द्रव्य ले सकते हैं आप। राड़ है, वाड़न शेपा है, शेपा चूर्ण है, ओवा चूर्ण है, आप ले सकते हैं। गुरुची है, आप ले सकते हैं। प्रक्षोभनागण में दी हुई सभी द्रव्यों का इस्तेमाल आप, नॉट स्पेसिफिकली इन डायबिटिक, मेनी ऑफ दी धूपन कर्म यू कैन यूज देम। आर्टीरियल इनसफिशियंसी के लिए क्या करना चाहिए? यू शुड गिव मेडिसिन। यू शुड गिव मेडिसिन इफ देर इज अ लोकल इनसफिशियंसी। जैसे मैंने कहा, जलौकाचरण का अच्छा रोल उसमें कर सकते हैं। रक्त प्रसादन और रक्त संवहन यूज करने के लिए गुरुची जैसे द्रव्यों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशोर गुगुल का बहुत बार इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे इनसफिशियंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सूक्ष्म त्रिफला का भी अच्छा फायदा होते हुए मुझे दिखा है। I think before going for a treatment, we should know about asadhya vrana conditions or avastha, isn't it? So we need to know more about the conditions practically, like with the help of images of your experiences. Yes, I think time constraint is there. I have a lot of images. जैसे मैंने कहा, yes, साध्य और असाध्य, जैसे मैंने संक्रामक व्याधि व्रण लिए थे, ट्यूबरकुलर अल्सर्स है, सिफिलिटिक अल्सर्स है, इनमें जनरली कष्ट साध्य होते हैं ये व्रण। तो साध्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए षष्ठी उपक्रम के ट्रीटमेंट मोडालिटीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे। असाध्य भ्रूण आर समथिंग विच आर डीप सीटेड वुंड, जैसे बेड सोर्स है, संक्रामक व्याधि है, इनको भी हम आजकल अच्छे टेक्निक्स आए हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि वो वुंड्स और ज्यादा आगे ना बढ़े। तो ये अवस्था इज इम्पोर्टेंट। असाध्य व्रण अवस्था इज समथिंग विच इज कॉमन टू द कोलोनाइज्ड वुंड, which I discussed in many slides previous. Colonized wounds are generally wounds with proper pathogenic organism. In that case, many of the medicines should be used. असाध्य अवस्था होने के बाद भी अगर व्रण को ठीक, अगर हम ऐसी स्थिति में लाए जिसमें वेदना कम हो, स्राव कम हो, तो भी it gives a good result to the patient. In fissure, after lateral sphincter, is it necessary to close the incision or keep it? You can keep it open. You can keep it open. मैं बहुत सारे स्फिंक्टरोमी के केसेस खुद करता हूँ, उसमें मैं वो वुंड ओपन रखता हूँ, जिसमें बाद में आप कोई भी मलहर, टिश्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट बेसिकली हील्स ग्रेनुलेशन। फिशर के आई थिंक डीप फिशर बहुत ज्यादा होंगे तो ही वुंड बड़ा होता है, नहीं तो फिर नॉर्मल मलहर यूज करेंगे और ओपन रखेंगे तो ज्यादा फायदा होते हुए दिखता है। Does Dupan help in maggot removal? I have no experience, but if they may, I don't know. नाड़ी व्रण में क्या करना चाहिए? नाड़ी व्रण में मैं क्षारवर्ती का इस्तेमाल करता हूँ। अगर नाड़ी व्रण इन्फेक्टेड है और तो वहाँ पे अगर मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जा रहा है, तो दो चीजें आप उसमें कर सकते हैं। वन इज अ सिरिंजिंग टेक्निक। अलग अलग व्रण कषाय आप ले सकते हैं। कषाय लेके उसकी प्रॉपर टॉयलेटिंग, मतलब कि जो एग्जिट पॉइंट होता है नाड़ी व्रण का, नाड़ी व्रण मतलब एक ही ओपनिंग रहती है, अगंदर मतलब दो ओपनिंग रहते हैं। तो नाड़ी व्रण में, साइनस में स्पेसिफिकली नाड़ी व्रण में ऊपर के ओपनिंग से आप वुंड टॉयलेटिंग कर सकते हैं इन कषायों से। और बाद में जो क्षार सूत्र रहता है उसको फोल्ड करके बहुत सारे केसेस में मैंने क्षारवर्ती के रूप में अंदर इंसर्ट करके रखता हूँ, 1 दिन 2 दिन के लिए। ये सिटिंग्स में चेंज करता हूँ, निकाल देता हूँ दूसरे या तीसरे दिन में, और वहां पे ना डिब्राइडमेंट होते हुए आपको दिखता है। द डेब्रिस or the dead tissue is debrided by this Ksharavati which causes definitive inflammation inside the nadi gland, and then if you can scoop it and clean it and then proper व्रण कर्म से आप वो उसको नाड़ी व्रण को जरूर भर सकते हैं। Is there role of लघु मंजिष्ठादि काढ़ा in ischemic wound in lower limb? Yes, many of the कषाय, जैसे मैंने कहा कि वो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। लघु मंजिष्ठादि आप लेने के लिए भी बोल सकते हैं। मंजिष्ठा सारिवा का काढ़ा आप बोल सकते हैं। मंजिष्ठा सारिवा का अवगा के लिए काढ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका भी फायदा होते हुए जरूर दिखता है। क्योंकि जो मेडिसिन अभ्यंतर प्रयोग के लिए लाने हैं वो अनगिनत है, वो आप कंडीशन के हिसाब से
आप चेंज और ये कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं. Yes, thank you for all the accolades. I hope everyone has understood how to go about the wound and what the treatment protocols we will use. Uh, I thank Shreyas e-learning team again for this opportunity. Most of the questions have been done. So thank you very much. Thank you again.